morning, students. Welcome to the School of Open Learning online classes. Myself, Guneet Kaur, and I'll be taking your company law. Today, we will start the chapter 3 Formation of Company. Like in the previous two classes, we have studied about what is company, company ke meaning, company ke characteristics, and in the last class, we talked about different kinds of companies. Just to give you a brief, in the last class, we talked about what is a public company, what is a private company, what is OPC, one person company, dormant company, and all the different kinds of companies. I have already shared the link of last class notes in the question and answers chat box. You can open that link and download the file. So for today, we will talk about chapter 3, that is formation of company. How company is formed, what are the different steps in it, and like always, last 10 minutes, 10 to 15 minutes, we will be keeping for your doubts. Anything that you want me to repeat. So let's start first with the formation of company. So students, as you can see it from the notes, formation of company. So there are two principal stages in the formation of company. So company को form करने के लिए दो important stages हैं. Number one is promotion and number two is incorporation. So ये दो major steps हैं जो company के formation of company की stages है. सबसे पहले promotion होता है and the next step is incorporation. So हम पढ़ेंगे promotion होता क्या है. Let's start with promotion. Promotion is the stage of conceiving an idea of forming a company to do a business and working on that idea. So students, जब आप अपने business के लिए अपना idea सोचते हो कि that मुझे ये वाला business करना है, ठीक है, and उस पे आप अपनी working start करते हो, तो उस stage को हम बोलते हैं promotion. जिस stage पे आप अपना thought process लगाते हो कि आपको किस बिजनेस से रिलेटेड अपना बिजनेस करना है या किस एरिया से रिलेटेड किस फंक्शनल एरिया से रिलेटेड आप अपना बिजनेस करना चाहते हो सो दैट इज द स्टेज ऑफ प्रमोशन एंड द पर्सन इन्वॉल्व इन दिस टास्क इज टर्म एज प्रमोटर. सो जो भी ये सारा काम करता है जैसे बिजनेस को इनिशियली स्टार्ट करता है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर. सो प्रमोशन कौन सी स्टेज होती है द स्टेज ऑफ कंसीविंग एन आइडिया. तो जिस स्टेज पे आप सोचते हो आप अपना डिसाइड करते हो द स्टेज एट विच यू डिसाइड अबाउट विच बिजनेस यू वांट टू डू व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू वांट टू फॉलो व्हाट काइंड ऑफ कंपनी you want to make. So the promoter may work up the idea with the help of his own resources, influence, or competence, or he may necessarily take the help of technical and legal experts to bring a company into existence. So company को बनाने के लिए जितना भी before formation of company या before incorporation of company जितना भी process होता है ना वो सब कुछ कौन undertake करता है promoters. सो प्रमोशन आई थिंक आपको समझ आ गया जिस स्टेज पर हम डिसाइड करते हैं एक आइडिया जिस स्टेज पर हमें एक आइडिया आता है कि हाँ हमें ये वाली कंपनी खोलनी है या ये वाला कंपनी में हमें ये वाला टास्क करना है ये वाला बिजनेस करना है सो उस स्टेज को हम बोलते हैं प्रमोशन एंड जो ये काम करता है द पर्सन इन्वॉल्व इन दिस टास्क इज नोन एज प्रमोटर. सो प्रमोटर के बारे में पढ़ते हैं. Promoter is a person who conceived the idea of starting a business, plans the formation of a company, and actually brings it into existence. So जैसे हमने पढ़ा तो ये सारी ड्यूटी ये सारे टास्क कौन करता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रमोटर. So he is the person who conceives, who thinks about an idea of starting a business, plans the formation of a company and actually brings it into existence. तो ये सारे काम एक कंपनी को सेटअप करने में जो करता है उसको हम बोलते हैं promoter. So promoter is also called as the father of the company. See, promoter is also called the father of the company who see the prospects of gain in a business. So promoter कौन होता है? He is the father of the company who conceives the idea of starting a business, who do all the necessary things that needs to be done before the incorporation of the company.
सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ कि कंपनी की फॉर्मेशन में दो स्टेजेस हैं. नंबर वन स्टेज इज प्रमोशन. एंड प्रमोशन क्या होती है? द स्टेज जिसमें हम डिसाइड करते हैं व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी वांट टू डू. द स्टेज ऑफ कंसीविंग एन आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी. जिस स्टेज पे आप अपने डिसीजन को करते हो, डिसाइड करते हो कि हाँ आपको अपनी कंपनी ओपन करनी है एंड यू वांट टू डू दिस बिजनेस. सो दिस स्टेज इज नोन एज प्रमोशन, राइट? एंड हु डज इट? प्रमोटर. जो ये सारे टास्क होते हैं कौन करता है? प्रमोटर. Next, so Section 2, subsection 69 of the Companies Act defines the term promoter. So I think आपको promoter का meaning clear हुआ. So promoter की definition Indian Companies Act 2013 में given है. So promoter according to the Companies Act who has been named as such in prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92. So promoter कौन होता है? जिसका नेम प्रोस्पेक्टस में मेंशन है. तो एक तो प्रमोटर वो हो गया. Second, who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. So second, who is the promoter? जिसके पास कंट्रोल है कंपनी के अफेयर्स के रिगार्डिंग, कंपनी के जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो जिसके कंट्रोल में है. सो दैट इज आल्सो नोन एज अ प्रमोटर. एंड सी, in accordance with whose advice, directors, or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. This shall, however, not apply to a person who is acting merely in a professional capacity. So promoter और कौन होता है? जिसकी advice पर board of directors और जितने भी important your shareholders, everybody who works, so promoter वो head होता है. सो आप प्रमोटर हेड भी कह सकते हो, प्रमोटर को फादर ऑफ द कंपनी भी कह सकते हो, राइट? सो प्रमोटर के रिगार्डिंग कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन प्रमोटर हो सकता है एंड कौन प्रमोटर नहीं हो सकता. सो उसके रिगार्डिंग बताया हुआ है हमें दैट अ प्रमोटर नीड नॉट नेसेसरली बी एसोसिएटेड विद initial formation of the company. One who subsequently helps to arrange the floating of its capital will equally be regarded as promoter. So student, इसका क्या मतलब है? जैसे अगर किसी पर्सन ने आपकी कंपनी का जो इनिशियल स्टेज होता है उसमें हेल्प करा, ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्रमोटर है जस्ट बिकॉज उसने इनिशियल के कुछ स्टेप्स फॉलो करे. ही हैज टू हेल्प टू अरेंज द फ्लोटिंग ऑफ इट्स कैपिटल. जैसे अगर आपकी कंपनी की फॉर्मेशन है, आप कंपनी बना रहे हो, फॉर एग्जांपल अ पब्लिक कंपनी, सो कंपनी की फॉर्मेशन के लिए जो भी कैपिटल चाहिए तो उसमें भी प्रमोटर को हेल्प करना होगा उसके फंड्स अरेंज करने में. सो ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एज इन की अगर किसी ने इनिशियल स्टेप्स फॉलो करे हैं तो वो प्रमोटर नहीं है. प्रमोटर की बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं, वो अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हैज टू हेल्प इन अरेंजिंग द फंड्स फॉर द कंपनी. So yeah, these are the basic important points regarding the promoter. And promoter does not include any person by reason of his acting in a professional capacity or persons engaged in procuring the formation of the company. A person who only advances money to promoters for meeting out preliminary expenses is not a promoter. अगर कोई आपको कह रहा है कि आपके अपने कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो भी आपके स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस हैं मैं उसके लिए आपको मनी देता हूँ कि आप अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को मीट करो, आई विल गिव यू मनी फॉर दैट. अगर कोई पर्सन आपको मनी दे रहा है कि आप अपनी कंपनी के इनिशियल एक्सपेंसेस को कवर अप कर सको तो उसको हम प्रमोटर नहीं कहेंगे. सो प्रमोटर एग्जैक्टली क्या होता है हमें उसके फंक्शंस एंड ड्यूटी से बहुत ज्यादा क्लियरली समझ आएगा. सो लेट्स understand what are the functions of promoter. The main function of promoter to conceive an idea of starting a business and explore its possibilities. So I think ये आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया कि प्रमोटर कौन होता है, who conceives an idea of starting a business. ठीक है, जो स्टार्ट करता है बिजनेस को, ठीक है, and who do all the necessary steps जो करने होते हैं जैसे funds arrange करना, documentation करना. So that person is known as a promoter.
First is very clear, who conceives an idea of starting a business, right? Next is to undertake detailed technical, economic, and commercial feasibility of the business propositions. Help of experts may be taken for that. So promoter वो ही नहीं है जो सिर्फ आइडिया रखता है कि ये हमें बिजनेस करना है. सेकंड पॉइंट कहता है फंक्शन का और क्या, प्रमोटर का और क्या फंक्शन है, वो अंडरटेक डिटेल टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल फीजिबिलिटी. वो टेक्निकलिटीज भी देखता है, वो इकोनॉमिक फैक्टर से भी कंसिडर करता है कि हाउ मच फंड्स वी हैव, कमर्शियल फीजिबिलिटी को भी देखता है. तो प्रमोटर का एक ओवरऑल फंक्शन होता है. हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स में बी टेकन, एंड अगर ही नीड्स एनी हेल्प ही कैन टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स. Third point, to conduct negotiations for the purchase of a business in case it is intended to purchase an existing business. For example, आप जो अपनी कंपनी फॉर्म कर रहे हो उसमें आप एक और बिजनेस परचेज करना चाहते हो. सो उस बिजनेस को परचेज करने के लिए कोई भी नेगोशिएशंस हैं, कि कोई भी नेगोशिएशन इन टर्म्स ऑफ कि आपको कोई भी, आप दोनों पार्टीज ने कोई भी डिस्कशन करनी है, तो promoter can also do that. Promoter can also conduct negotiation for the purchase of a business. अगर कोई भी business purchase कर रहे हो आप अपने new company में, so that thing also can be done by a promoter. Next function of promoter is to collect the requisite number of persons, that is 2 in case of private and 7 in case of public company, who can sign the memorandum and articles of company and also agree to act as the first directors of the company. सो प्रमोटर का रोल ये भी है टू मेक श्योर, अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो, सो हमें पता है कि इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी वी नीड टू हैव मिनिमम 2 members, and in case of public company we need to have 7 members. So this is also one of the function of a promoter, to make sure that we have 2 persons for a private company if we're forming that, and to make sure that we have 7 persons in case of a public company. Next, to decide the following: the nature of company, the location, the amount and form of its capital, the underwriters or brokers, the bankers, the auditors, and the legal advisors. So almost everything has to be decided by a promoter. Promoter का सिर्फ यही रोल नहीं है कि promoter को सिर्फ आइडिया देना है, आइडिया सोचना है कि कौन सा बिजनेस करेंगे. He has to do lot of other things. उनको क्या क्या और ड्यूटीज है प्रमोटर की, उनको डिसाइड करना है कंपनी का नेचर क्या है, नेचर ऑफ द कंपनी, किस सेक्टर में आपकी कंपनी फॉर्म हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन, पावर जनरेशन, द लोकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस. सो जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करोगे एड्रेस, उसकी लोकेशन, the amount and form of its capital, how much money is needed for a company, for the formation of the company. Uske regarding that decisions will be taken by a promoter. The underwriters or brokers, अगर आप अपने कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हो तो उसमें आपको you need underwriters or brokers, so उनके regarding the decisions promoter लेंगे. The bankers, the auditors, the legal advisors, almost everything has to be done by a promoter. Next, to get the memorandum of association and article of association drafted. So students, ये दो बहुत important documents हैं. One is MOA and another one is AOA. So memorandum of association को हम बोलते हैं एक company का fundamental document, जिसमें company के purpose, company के objectives, सारी detail होती है memorandum of association, जिसको हम बोल सकते हैं primary document, and आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम बोल सकते हैं सेकेंडरी डॉक्यूमेंट. सो जो भी इम्पोर्टेंट मेन चीजें हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी के पर्पस क्या है, वो सब एमओए में आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड रिमेनिंग ऑल द डॉक्यूमेंटेशन कम्स अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सो ये भी एक प्रमोटर का फंक्शन है, दैट उनको एमओए एंड एओए ड्राफ्ट कराना है, प्रिंट करना है. Another function of promoter is to enter into preliminary contract. अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी अंडरराइटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना है, तो ये भी प्रमोटर का फंक्शन है. टू पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी के फॉर्मेशन होने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको पे करना, दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ प्रमोटर.
to arrange funds required by the company, that is also a function of promoter, to arrange for the preparation of prospectus, its filing, advertisement and issue of capital. जो जब भी आप कंपनी के शेयर्स कोई भी इशू करती है कंपनी, सो दे इशू अ प्रोस्पेक्टस, उसके अंदर बहुत डिटेल में कंपनी के बारे में लिखा होता है, व्हाट आर द कंपनी गोल्स, कंपनी के इन्वेस्टर्स कौन है एंड एवरीथिंग. सो इन प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करना, उसकी फाइलिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना एंड कैपिटल इशू करना, दैट इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ प्रमोटर. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया कि प्रमोटर का रोल क्या होता है कंपनी की फॉर्मेशन में. सो अभी तक स्टूडेंट्स कंपनी फॉर्म नहीं हुई, अभी तक सिर्फ कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले वाला जो स्टेज है जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन. सो इनकॉर्पोरेशन जो हम अभी पढ़ेंगे वो स्टेज होती है जब कंपनी एक्चुअली फॉर्म हो गई है, कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस है. उसकी लीगल एग्जिस्टेंस कंपनी के होने से पहले जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं प्रमोशन. जब आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, आप फंड्स अरेंज करते हो, कंपनी की जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है आप वो करते हो, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करते हो, लोकेशन डिसाइड करते हो, एंड एवरीथिंग बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज प्रमोशन, राइट? A promoter can neither be termed as an agent nor a trustee of a company which has not come into existence. So जो promoter है उसको हम agent भी नहीं कह सकते because अभी तक company form हुई नहीं. Company जब incorporate हो जाएगी तो बोल सकते हैं that promoter is an agent of the company, but अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो प्रमोटर कैन नीदर बी टर्म्ड एज एन एजेंट नॉर अ ट्रस्टी ऑफ अ कंपनी. अभी कंपनी फॉर्म ही नहीं हुई, एग्जिस्टेंस ही नहीं आई, तो हम प्रमोटर को एजेंट भी नहीं कह सकते, नीदर वी कैन कॉल हिम एज अ ट्रस्टी ऑफ अ कंपनी. सो हम कहते हैं जो प्रमोटर्स होते हैं उनका एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है. फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मीनिंग है दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट. अब देखो कंपनी अभी फॉर्म इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, कंपनी अभी एग्जिस्ट नहीं हुई, बट दे आर वर्किंग फॉर द कंपनी. जो प्रमोटर्स है वो कंपनी के लिए सारे काम कर रहे हैं. तो जो प्रमोटर का जो नेचर ऑफ वर्क होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूडिशरी नेचर. इसका मतलब क्या है? इट इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट फेथ एंड कॉन्फिडेंस. ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर. सब प्रमोटर की क्या क्या ड्यूटीज हैं? नंबर वन, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट. प्रमोटर्स शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी. अब देखो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए सारे टास्क कौन कर रहा है? प्रमोटर. सो ये प्रमोटर की ड्यूटी है कि वो बहुत ही अटमोस्ट फेथ पर, ट्रस्ट पर काम करें एंड दे डू नॉट मेक एनी secret profit at the cost of the company. Second, disclosure of material facts. अगर कोई भी मटेरियल फैक्ट है, या आप कह सकते हो मटेरियल फैक्ट का क्या मतलब होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर है तो उसका डिस्क्लोजर, उसके बारे में बताना किसकी ड्यूटी है? प्रमोटर की. It is the duty of the promoter to disclose fully all material facts relating to the formation of the company. So it is the duty, ये promoter की duty है to make sure जितनी भी important information है उसको disclose करे, उसको बताए सबको, all the members. If the promoter failed to disclose complete fact, company may set aside the transaction and recover the benefit earned by them. So इसके regarding अगर promoter fails to disclose any material fact, अगर कोई भी important information है जो promoter skip कर देता है या deliberately जानबूझ के disclose नहीं करता, then जो भी इसके लिए liability होगी वो promoter bear करेगा. इसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है. सो दैट इज एडलैंगर वर्सेस न्यू सिम्बेरो फॉस्फेट कंपनी. एडलैंगर वर्सेस न्यू सिम्बेरो फॉस्फेट कंपनी. अब इसमें क्या होता है?
Erlanger, together with some of his friends, purchased an island containing phosphate mines for £55,000. So Erlanger, along with his friends, he has purchased phosphate mines. So Erlanger and his friends decided to purchase an island containing phosphate mines. Then they have sold this island to a newly formed company for £110,000. All the 5 directors of the newly formed company were nominated by Erlanger. सो स्टूडेंट सिर्फ अभी तक समझो कि जो एर्लांगर पर्सन है उन्होंने एक आइलैंड परचेज करा along with their friends for £55,000. Okay, then they have sold this £55,000 island to a new company for 1,10,000. So all the directors of the new company, अब जो नई कंपनी को उन्होंने सेल कर दिया अपना आइलैंड, उसके जो भी डायरेक्टर्स थे उनको किसने नॉमिनेट करा? Erlanger ने. So at the time of the purchase agreement with Erlanger, 2 directors were abroad, while out of the remaining 3 who signed the purchase deed, 2 were completely under the control of Erlanger. So जब Erlanger ने अपना आइलैंड सेल करा, सो जो न्यू कंपनी बनी उसके जो भी डायरेक्टर्स थे 2 out of 5 2 वर अब्रॉड और इनको किन्होंने अपॉइंट करा? Erlanger ने. एंड जो रिमेनिंग 3 थे वो किसके कंट्रोल में थे? Erlanger के. Later on a prospectus was issued inviting the public to subscribe for the shares of the company. जब भी आप अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करते हो तो उसके लिए आप एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हो जिसके थ्रू आप इनवाइट करते हो कि पब्लिक से दैट आप अपनी कंपनी के इतने शेयर्स हैं, हाउ मच दे वांट टू परचेज, तो उसके रिगार्डिंग एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस. The purchase agreement was approved at the first meeting of the shareholder, but they were not told all material facts regarding the transaction. After some time, the company went into liquidation. So what happens is कि Erlanger ने जब अपना आइलैंड न्यू कंपनी को सेल करा तो उसके जो 5 डायरेक्टर्स थे जिसमें से 3 डायरेक्टर्स Erlanger के कंट्रोल में थे एंड 2 अब्रॉड थे. Then due to some reason कंपनी लिक्विडेट हो गई एंड पता चला दैट जो भी परचेज अग्रीमेंट वाज अप्रूव्ड एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, जो हम कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको जो भी मटेरियल फैक्ट्स थे वो डिस्क्लोज नहीं करे गए. आफ्टर सम टाइम द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन. The liquidator filed a case against Erlanger to recover the profit made by him on account of sale of island to the company. अब क्या होता है, कंपनी लिक्विडेट हो गई, देन अ केस फाइल करा गया अगेंस्ट एर्लांगर बिकॉज उन्होंने एर्लांगर को एज अ प्रमोटर कंसिडर करा क्योंकि बीइंग अ प्रमोटर उन्होंने एर्लांगर ने न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट करे. ठीक है, सो प्रमोटर की ड्यूटी होती है टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट्स. सो इसलिए केस फाइल हुआ एर्लांगर के अगेंस्ट और उनसे रिकवर करा गया जितना भी अमाउंट था. Erlanger defended the case on the plea that the board of directors had full knowledge of the facts. His contention was rejected and he was asked to return the benefit to the liquidator. So, क्रक्स जो है ब्रीफ में ये समझो कि प्रमोटर की ड्यूटी होती है टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स. अगर प्रमोटर जैसे इस केस में एर्लांगर ने इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी थी, सो एट द एंड जब कंपनी लिक्विडेट हुई, डिसॉल्व हुई, तो उस केस में एर्लांगर के अगेंस्ट केस फाइल हुआ कि इट इज हिज मिस्टेक दैट ही हैज deliberately didn't inform about the material information about the company. सो इस केस में एर्लांगर को कंपनसेट करना पड़ा और उनको जितना भी बेनिफिट हुआ था सेल करने पर अपने आइलैंड को न्यू कंपनी को, वो उनको पे बैक करना पड़ा. सो ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर आई थिंक आप क्लियर हो गई कि क्या है, दैट दे शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी. इट इज देयर ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स. Now, what are the next topic is what are the liabilities of promoter? Non-disclosure of secret profit. In case a promoter fails to make full disclosure of his dealings and profit made in promoting the company, he can be compelled by the company to hand over such secret profit. So promoter को
पहली बात है, दे आर नॉट अलाउड टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट, ठीक है। In case a promoter fails to make full disclosure of his dealings in profit, he can be compelled by the company to hand over such secret profit. अगर पहले तो promoters को allowed ही नहीं है disclose करना profit, in case they do it, then they are compelled, then they are forced to hand over the secret profit. Second is non-adoption of preliminary contract. If a promoter enters into a contract on behalf of the company before the company was actually incorporated, he may be held personally liable for non-adoption of those contracts by the company, provided he has purported to act as an agent. So स्टूडेंट लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर का क्या मतलब है? इन केस अगर प्रमोटर ने कोई सीक्रेट प्रॉफिट करा है देन ही विल बी हेल्ड लाइबल, ठीक है। अगर प्रमोटर कोई प्रिमिलरी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ अपने बिहाफ पर, वैसे तो जो भी ट्रांजैक्शन प्रमोटर करेगा वो कंपनी के बिहाफ पर होंगी, बट इन केस ही डज ऑन हिज बिहाफ देन आल्सो ही विल बी हेल्ड लाइबल। फ्रॉड इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के इनिशियल स्टेज पर कोई भी फ्रॉड होता है देन आल्सो इसके सारे लाइबिलिटी प्रमोटर पर है, विल बी हेल्ड लाइबल। ओमिशन इन द प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू हुआ एंड उसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओमिट हो गई, फॉरगॉट टू मेंशन, तो उस केस में इन केस ऑफ ओमिशन ऑफ फैक्ट, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर मिस कर देता है लिखना, द प्रमोटर शैल बी लाइबल टू बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which may extend to 3 years, 3 years की imprisonment है and fine of ₹50,000 to 3 lakh. So both the cases, अगर कोई भी omission of fact होता है तो इस केस में फाइन भी होगा and imprisonment भी है। मिसरिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस में मिसरिप्रेजेंटेशन है, अनट्रू स्टेटमेंट्स हैं, सी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसको मिसरिप्रेजेंट करा गया, देन आल्सो प्रमोटर शैल बी लायबल। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको अब प्रमोटर के बारे में धीरे धीरे समझ आ रहा होगा दैट प्रमोटर की क्या ड्यूटीज हैं, प्रमोटर के क्या फंक्शंस हैं, एंड प्रमोटर किस किस केस में लायबल है, व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ द प्रमोटर। So our next topic is remuneration to promoter. अब students जब promoter कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले इतने सारे टास्क करता है, इतने सारी ड्यूटीज करता है, so प्रमोटर को भी तो कुछ मिलना चाहिए। what amount he deserves, प्रमोटर का क्या रेम्यूनरेशन है, प्रमोटर की क्या सैलरी है, तो इसके रिगार्डिंग हमें बताया दैट द प्रमोटर में बी रेम्यूनरेटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब प्रमोटर का जो रेम्यूनरेशन है, सैलरी है, उसको हम बिलो 3 फॉर्म्स में दे सकते हैं। नंबर 1, promoter may sell his own asset to the company at a profit for cash or shares in the company. अब प्रमोटर के पास एक ऑप्शन है कि वो अपने एसेट्स कंपनी को सेल कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी, मैं एक कंपनी बना रही हूँ जिसकी मैं प्रमोटर हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं कंपनी की न्यू शेयर होल्डिंग ले सकती हूँ। कैसे? बाय सेलिंग माय ओन एसेट्स। मैं अगर मेरे पास लैंड है दैट आई हैव वन ऑफिस, मैं अपने ऑफिस को सेल कर देती हूँ कंपनी ऑफिस के लिए, देन इन रिटर्न मैं कंपनी से कैश और शेयर्स ले सकती हूँ। सेकंड, he may be given commission on the purchase price of the business taken over by the company. जैसे अगर एक कंपनी ने एक न्यू बिजनेस परचेज करा है या टेक ओवर करा है, then he'll be is he should get a commission, he can get a commission on that. Third, he may be guaranteed a lump sum as remuneration either in cash or in shares or debentures. So एक lump sum amount भी fix कर सकते हैं that अगर आप प्रमोटर हो कंपनी के तो आपको इतना remuneration कैश में लेना चाहते हो, कैश में, शेयर्स में या डिबेंचर्स में ले सकते हो। So students, this was all about promoter. So ये जो अभी तक हमने पढ़ा, ये हमने प्रमोटर के बारे में पढ़ा। The next topic that we are going to start is incorporation. This is the stage 2. अभी तक हमने stage 1 पढ़ा कि
फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में हमने पढ़ा दैट देयर आर टू स्टेजेस, दो स्टेजेस होती हैं। नंबर वन थी हमारी प्रमोशन, जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया। नाउ द सेकंड स्टेज इज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का स्टूडेंट्स मीनिंग है दैट अब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसको हम आरओसी भी बोलते हैं। इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग है दैट आपकी कंपनी अब एग्जिस्ट करती है लीगली एज अ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी। Incorporation brings a company into existence as a separate corporate entity. तो जब हम कहते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो मतलब इट इज नाउ इन एग्जिस्टेंस एज अ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी। वो अब रजिस्टर्ड हो चुकी है, वो कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस है, right? So as per section 3 subsection 1, a company may be formed for any lawful persons. So company के लिए हमें पता है 7 or more persons चाहिए हमें पब्लिक कंपनी में, 2 persons चाहिए minimum 2 or more, 7 or more for public, 2 or more for private, and 1 person company कब होती है जब हम ओपीसी बनाते हैं। सो इन दैट केस हमें 1 person मेंबर चाहिए होता है। तो लॉफुली दीज आर द रिक्वायरमेंट्स कंपनी फॉर्म करने के लिए, दैट वी नो कि प्राइवेट के लिए मिनिमम 2, पब्लिक के लिए 7 एंड ओपीसी के लिए 1 person कंपनी के लिए ओनली 1 person इज रिक्वायर्ड, राइट। सो अब हम देखते हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन। जब हम कहते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रिलिमिनरी स्टेप्स हैं। Number one step is a company cannot be registered with name which is considered to be undesirable in the opinion of the central government. So पहला स्टेप है कि आपकी कंपनी का जो नेम होता है, the name of your company जो आप डिसाइड करते हो, वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। दैट इट शुड नॉट बी कि जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट हो, जो उनको ठीक ना लगे। द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल विद एनी अदर कंपनी। और कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है, यू कैन नॉट फॉर्म अ कंपनी विद द नेम रिलायंस, ताकि जो आपके पब्लिक है उनके माइंड में एक कंफ्यूजन ना हो। सो योर नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल, सेम नाम नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए दूसरी कंपनी के साथ का, राइट। द सेकंड प्रिलिमिनरी फर्स्ट प्रिलिमिनरी स्टेप्स टॉक अबाउट कि आपका जो नेम होना चाहिए वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और identical with or resemble to nearly to the name of an existing company। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पता है रिलायंस इज अ कंपनी, सो रिलायंस कंपनी आप अपना फॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज ये जो नॉर्मल पब्लिक के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। Second preliminary step is that you have to pay a fee of rupees 500 to be paid alongside, and the digital signature of the applicant proposing the company has to be attached। जब भी आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो आपको 500 रुपीज की फी पे करनी है एंड डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो आपको अटैच करना है। Third step is the name approval will be reserved by the registrar for a period of 20 days from name approval। So जब भी आप अपने नेम सजेस्ट करते हो कंपनी के लिए तो वो रजिस्ट्रार के पास 20 डेज के लिए होता है फॉर अप्रूवल टाइम। तो उस आपका जो कंपनी नेम है उसका अप्रूवल टाइम है 20 डेज। Fourth, before promoter begin the incorporation of the company, they have to appoint CA lawyers to help them in preparing various documents। So देखो जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी अब लीगल एग्जिस्टेंस में है। सो एट दिस स्टेज प्रमोटर की ड्यूटी होती है कि वो लॉयर भी अपॉइंट करे, चार्टेड अकाउंटेंट भी अपॉइंट करे, बिकॉज ये जैसे आपने पढ़ा था प्रमोटर कैन टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्टीज। सो ये एक्सपर्टीज ही है। अब जितनी भी अकाउंटिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रमोटर नहीं कर सकता, ही नीड एक्सपर्टीज इन दैट एंड फॉर दैट ही कैन हायर अ सीए लॉयर फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स। So next fifth step is arrange for drafting of the memorandum and article of association by a solicitor। Solicitor is again a lawyer। So फिफ्थ स्टेप कहता है कि आपको अपना कंपनी का जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके लिए आपको ड्राफ्ट करना है। यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ लॉयर, वेटिंग ऑफ द सेम बाय आरओसी एंड प्रिंटिंग द सेम।
सो फिफ्थ प्रिलिमिनरी स्टेप होता है कि आप अपने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उनको ड्राफ्ट करो एंड उनको प्रिंट करो, right? The MOA and article must be signed by at least 7 subscribers, two in case of private company, along with address, description, occupation, if any, in the presence of at least one witness. तो जो भी कंपनी का हमारा जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट हो चुका है, इट शुड बी साइंड विद एट लीस्ट 7 सब्सक्राइबर. अगर पब्लिक कंपनी है तो 7, 2 है तो प्राइवेट कंपनी में साइन होना चाहिए along with the address, description, occupation in the presence of at least one witness. I think अब students आपको incorporation के 5 steps clear हो गए. नंबर 1 टॉक्स अबाउट कि जो कंपनी का नेम है वो डिजायरेबल होना चाहिए. आपको 500 रुपीज फी पे करनी है और डिजिटल सिग्नेचर अटैच करना है. थर्ड पॉइंट इज दैट आपका जो नेम का अप्रूवल टाइम है उसके लिए 20 डेज का पीरियड है, टाइम पीरियड. फोर्थ पॉइंट इज दैट आपको यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ सीए एंड लॉयर्स फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स. Fifth point is that your MOA should be drafted and article of association both should be drafted and printed. Now applying to the registrar of companies. तो अभी हमने preliminary steps में पढ़ा कि हम ROC के पास जाते हैं नेम अप्रूवल के लिए. सो डिटेल में पढ़ते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जब हम उनके पास जाते हैं. Registrar of companies के लिए after having done the preliminary work, the promoters are required to make an application to the registrar of the state in which company's registered office will be situated. So जब आपने promoter ने preliminary काम सारा कर लिया, then उनकी क्या ड्यूटी है that वो जाएंगे जो भी हर लोकेशन पे, हर लोकेशन का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस होता है. जहाँ पर भी वो सिचुएटेड है प्रमोटर जाएंगे. प्रमोटर वहां पर अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए वो लेकर जाएंगे, जिसमें क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराने के लिए. नंबर 1 द MOA, and MOA means memorandum of association and article of association is AOA. The MOA and AOA has to be duly signed by all the subscribers to the memorandum in such a manner. So आपका AOA and MOA signed होना चाहिए. B, a declaration in the prescribed form by an advocate, chartered accountant, cost accountant, or a company secretary in practice who is engaged in the formation of the company by a person named in the articles. So इसका मतलब है कि नंबर 1 स्टेप कि आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आपको साइन करवाना है बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स. सेकंड, एक डेक्लेरेशन लेनी है. किन से लेनी है? एडवोकेट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कॉस्ट अकाउंटेंट से. इनसे एक डेक्लेरेशन एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में बाय द सीए, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी कंपनी में आपने एक्सपर्टीज हायर करी है. Third, a declaration from each of the subscriber to the memorandum and from person named as the first director. So एक declaration आपको हर subscriber से लेनी है and जो भी company के first directors हैं उनसे लेनी है. So declaration होता क्या है? इसका purpose होता है कि आप उनसे written में ले रहे हो that if there is any fraud or if there is any misrepresentation, there is any omission, they will be held liable. Next, the address for correspondence till its registered office is established. जब तक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं होता, जब आप जा रहे हो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास तो उनको आप एड्रेस की डिटेल दोगे कि कम्युनिकेशन के लिए वो किसको कांटेक्ट करें. नेक्स्ट, the particulars of name including surname, family name, residential address, nationality and such other particulars of every subscriber to the memorandum. So आपको रजिस्ट्रार के पास आप जब जाते हो अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जितने भी कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं उनका आईडी प्रूफ, उनका फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये सारी डिटेल आपको सबमिट करनी होती है while registering your company with registrar of companies.
Particulars of the person mentioned in the articles as the first directors of the company, their name, including the surname or family name, the director identification number. So जो भी कंपनीज के डायरेक्टर हैं उनको एक दिन बोलते हैं हम इसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट होता है। ये कैसे अलॉट होता है, इसके लिए भी एक फॉर्म होता है, इसका भी एक प्रोसीजर है गवर्नमेंट का जिसको फॉलो करते हैं। सो देन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव देयर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर। ये भी सबमिट करना होता है टू द आरओसी, टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। G point, the particulars of the interest of the person mentioned in the articles as the first directors of the company in other firms or bodies, corporate, along with their consent to act as directors of the company in such a manner and may be prescribed. So जो भी company के directors हैं उनको भी एक फॉर्म में declaration मेंशन करनी होती है और सबमिट करना होता है दैट दे विल एक्ट एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो ये जितने भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन थी, ये जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे, ये हमें किसको सबमिट करना होता है, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जब हम अप्लाई करते हैं कंपनी को रजिस्टर कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, and then is the last topic is certificate of incorporation. Okay, so let's do online registration of a new company. जो ये टॉपिक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये हम अभी कवर कर लेते हैं। एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा incorporation, that we will do it in our next class. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, अभी तक हमने पढ़ा कि ऑफलाइन का क्या प्रोसीजर है। आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में जाना होता है, जो भी एक ऑथराइज्ड लोकेशन होती है आपके अपने एरिया में, आपकी अपनी प्रोबेबली आपकी स्टेट का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, सपोज दिल्ली में जहाँ पर भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, आप वहाँ पर जाके ये सारी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके आप अप्लाई करोगे, अपनी कंपनी को रजिस्टर करोगे। नाउ यू हैव द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब ऑनलाइन रजिस्टर भी करा सकते हैं हम अपनी न्यू कंपनी को। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कुछ स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1 इज एप्लीकेशन फॉर डिन। जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको अलॉट होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सबसे पहले जब भी हम कंपनी को रजिस्टर कराते हैं तो ये जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये हमें लेना होता है। इसके लिए हम फाइल करते हैं ई फॉर्म डिन 1, ई फॉर्म डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 to obtain DIN. Second is acquire और register digital signature certificate. सबसे पहले हमने डायरेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर अप्लाई कर दिया। सेकेंड इज हम अप्लाई करेंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए। सो एक कंपनी के लिए अब देखो ऑनलाइन जब आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो जो डिजिटल सिग्नेचर है वो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म में आएगा। सो उसके लिए भी आपको अप्लाई करना है फॉर डिजिटल सिग्नेचर। Step 3 is new user registration. To file an e-form or to avail any paid service on Ministry of Corporate Affairs portal, it is first required to be registered. जैसे आप for example आप कोई भी न्यू साइट पे जाते हो, for example Facebook, तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है, न्यू यूजर होते हो, यू साइन इन करने से पहले आप न्यू यूजर बनते हो। जस्ट लाइक कंपनी का भी आप जब रजिस्टर करा रहे हो तो आपको सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है as a new user category, new user registration. Step 4 is incorporate a company. So step 4 कहता है कि कंपनी को incorporate करने के लिए first is select in order of preference at least one suitable name up to a maximum of 6 names indicative of the main objects of the company. So सबसे पहले आपको एक suitable name कंपनी का select करना है and it should be indicative of the main objects of the company. So आपकी कंपनी का नाम भी ऐसा होना चाहिए जो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को इंडिकेट करे। सेकंड पॉइंट सेज सबसे पहले आपने नेम सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज ensure that the name does not resemble the name. ये हम पढ़ चुके हैं, आपको मेक श्योर करना है कि किसी अदर कंपनी से, अदर रजिस्टर्ड कंपनी से नेम रिजेंबल नहीं होना चाहिए। थर्ड इज
apply to the concerned ROC to ascertain the availability of the name. आपने फिर क्या करना है, जैसे ऑफलाइन में था सेम सेम चीजें हैं जो फॉलो होंगी ऑनलाइन में भी। बस एडिशनल स्टेप क्या था, आपको सबसे पहले डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है, देन आपको अप्लाई करना है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। थर्ड स्टेप, दैट नेम शुड नॉट बी रिजेंबल विद एनी अदर कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको आरओसी के पास जाके नेम अवेलेबिलिटी चेक करनी है एंड 500 रुपीज फी पे करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब आपका नेम अप्रूव हो गया, द एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू कंपनी बाय फाइलिंग फॉर्म INC 7। अब जब आपका नेम अप्रूवल हो गया, देन आप क्या कर सकते हो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे विद द फॉर्म INC 7। Next is arrange for stamping of the memorandum and article with the appropriate stamp duty. It can be paid electronically. कंपनी को स्टैम्प के लिए हम जो नोटरी से डॉक्यूमेंट बनते हैं उसके लिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी फी भी पे कर सकते हैं एंड अप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी पर रजिस्टर कराएंगे। Get the MOA and AOA signed by at least 2 subscribers. अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 सब्सक्राइबर्स एंड 7 अगर पब्लिक कंपनी में है तो उनकी सारी डिटेल्स के साथ और एक आई विटनेस के साथ हम साइन करवाएंगे। Ensure that the memorandum and article is dated on a date after the date of stamping. Next is log into the portal and fill the following form and attach the mandatory documents. Then आपको पोर्टल में लॉग इन करना है और फॉर्म INC 22 एंड DIR 12 आपको अटैच करना है। INC 22 इज नोटिस ऑफ सिचुएशन और चेंज ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर समटाइम्स क्या होता है कि जब आपने अप्लाई करा न्यू कंपनी के उस पर रजिस्टर करने के लिए, न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो आपने पहले डिसाइड करा हो जब प्रमोशन के टाइम वो चेंज हो रहा हो, तो उसके लिए आप एक फॉर्म सबमिट कर सकते हो टू इन्फॉर्म कि अब आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी लोकेशन चेंज हो रही है। फॉर्म नंबर DIR 12 टॉक्स अबाउट पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी आप न्यू डायरेक्टर्स कंपनी में अपॉइंट कर रहे हो या न्यू मैनेजर्स आ रहे हैं या कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग डिटेल भी आप इन्फॉर्म करोगे विद द फॉर्म DIR 12 एंड डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। सो डिक्लेरेशन तो हर जगह है दैट कोई भी अगर मिस्टेक होती है, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, फ्रॉड होता है, सो फॉर इसके लिए आप एक डिक्लेरेशन देते हो कि दैट वी कंफर्म दैट एवरीथिंग इज ट्रू एंड बेस्ट टू आवर नॉलेज, तो ये एक डिक्लेरेशन दी जाती है। सो ये सारा प्रोसेस था हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ न्यू कंपनी। सो ओनली वी आर लेफ्ट विद वन लास्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। This we can do in the next class. um, Before and now I can take your doubts, so you can post it in the question and answer chat box about all the doubts that you have, and we can, and I'll try to resolve it. So I've already mentioned book is Anil Kumar that you have to refer. Chapter 3 notes, I will share the link of today's notes in the next class because I have to upload the notes. I'll do it after the class. Chapter 1 link, okay. I will share all the links in the next class. Book is Anil Kumar. I will provide the notes in the next class. Promoter and owner are same, no students, promoters are your आप सोच सकते हो कि प्रमोटर सिर्फ आपके लिए एक एम्प्लॉय है जिसको आपने हायर करा है, जो आपके कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो सारी डॉक्यूमेंटेशन करता है। जैसे मेरे को फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हायर कर रही हूँ,
मेरी कंपनी है, ठीक है, आई एम इन्वेस्टिंग द मनी इन द बिजनेस, मैंने अपना पैसा लगाया है, तो ओनरशिप किसकी हुई? मेरी हुई, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। नाउ प्रमोटर कौन होगा? जिसको मैंने ड्यूटी असाइन करी कि आप कंपनी के स्टार्ट होने से पहले का जो प्रोसेस है, कि उसका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस देखना, कंपनी की लोकेशन डिसाइड करना, कंपनी के लिए फंड्स अरेंज करना, कंपनी कौन सा बिजनेस करेंगे उसके बारे में सोचना, तो ये सारा प्रोसेस करता है प्रमोटर। एंड ओनर्स होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, जिनका मनी इन्वेस्ट होता है कंपनी में। तो दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, इन दोनों को कंफ्यूज मत होना, प्रमोटर इज अ डिफरेंट पर्सन एंड ओनर इज अगेन अ डिफरेंट पर्सन। Even promoter can also file a case if the directors do such things. Yes, promoter can also. Don't worry, आपको जो भी visibility issue आता है उसके लिए I'll be sharing notes in the next class. आप then you can also revise it. I've already shared the notes link. I've already published the link for last class notes. Kinds of company का link मैंने share कर दिया है. And जो आज हमने पढ़ा formation of company, इसका मैं next class में दूंगी because अभी एक topic रहता है इसका, non disclosure of secret profit. So ये एक मैं आपको बताती हूँ, non disclosure of secret profit. ये एक लाइबिलिटी है प्रमोटर्स की, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट। मतलब in case a promoter fails to make full disclosure of his dealings and profit made in promoting the company, he can be compelled by the company to hand over such profit. So इस केस में क्या है, अगर प्रमोटर ने, इन केस प्रमोटर हैज मेड सीक्रेट प्रॉफिट, ठीक है, हमें पता लगा कि प्रमोटर ने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करा है एंड ही इज नॉट टेलिंग अस, ही इज नॉट द टेलिंग द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, बट उनको पता लग गया है कि प्रमोटर ने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करा है। सो इन दैट केस प्रमोटर को लाइबल हेल्ड करा जाएगा कि उन्होंने सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करा और डिस्क्लोज भी नहीं करा। इन केस उन्होंने करा है सीक्रेट प्रॉफिट अर्न एंड वो डिस्क्लोज भी कर रहे हैं डायरेक्टर्स को, देन इट्स फाइन, बट इफ ही इज नॉट डिस्क्लोजिंग इट, then it's a problem and then he'll be held liable for that. What is solicitor? Solicitor is a lawyer. जैसे हम lawyers को solicitors भी बोल सकते हैं, who help in legal documentation, जो भी legal requirement के लिए हमें solicitor is a different name for a lawyer. एमओ एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस डिफाइन करते हैं। एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हमारी एमओए में मिस हो गई है, वो सारी हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं। Ministry of Corporate Affairs portal. I will show it in the next class. I think you can also Google it. आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गूगल पे सर्च करो एंड देन यू कैन ओपन एंड लुक एट द पोर्टल। The type of questions that you get in exam, I think sample papers and tenure are best for that, but I think for as of now the objective is कि आप concepts की clarity लो, understand करो process। ओके, कॉर्पोरेट वेल आप लोगों को टॉपिक है एक, मंशु wants to know about corporate whale। तो मैं बता देती हूँ, ये हमारा चैप्टर 1 का टॉपिक था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल में ये होता है कि हम कहते हैं जो कंपनी है और जो कंपनी के मेंबर्स हैं, दे बोथ आर, वी से दैट दे बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज। हम कंपनी का हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है दैट कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, बट कुछ सिनेरियोज में हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है कि हम
इन कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जब हम कहते हैं कि ये दोनों डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं है, ये दोनों सेम है। अगर जैसे मुझे अपना टैक्स बचाना है, मैं टैक्स सेविंग के लिए अगर एक कंपनी फॉर्म कर रही हूँ, तो मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए एक न्यू कंपनी बना दी, फायदा किसका हो रहा है? मेंबर का। तो इन सच केसेस में हमारा जुरिस्डिक्शन की प्रोविजंस हैं जिसमें हम कहते हैं कि इन दैट केस हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करते हैं। हम जो कहते हैं कि ये दोनों सेपरेट एंटिटीज है, इस कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं एंड इसको एक ही कंसिडर करते हैं, दैट मेंबर एंड कंपनी आर सेम, जब ऐसे सिनेरियोज होंगे जो चैप्टर 1 के नोट्स में है। Yes, it is important to remember the section. अगर आप sections याद करोगे, so it is an added advantage. You will get extra marks for that. Promoter and owner same नहीं है. Promoter and entrepreneur भी same नहीं है. They both are different आइडेंटिटी। प्रमोटर आपके लिए बस एक एम्प्लॉय है जिसको आप हायर करते हो, रेम्यूनरेशन करते हो, सैलरी देते हो, जो आपके लिए ड्यूटीज, बेसिक काम कंपनी की जो भी इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी काम करने हैं वो कर दे। अगर आपको करंट एडिशन नहीं मिल रहा, देन यू कैन आल्सो बाय लास्ट ईयर एडिशन 2019 2018। बस मेक श्योर करना 2015 के बाद वाला एडिशन नहीं लो, सो दैट कंपनीज एक्ट 2013 उसमें इनकॉर्पोरेटेड हो। इट डजंट मैटर कि आप लेटेस्ट एडिशन लो। So don't worry about the notes. What I'll do in the next class, I'll share all the links. अभी तक हमने 3 चैप्टर करे हैं. We are doing the third chapter भी थोड़ा सा रहता है. तो मैं next class में all the 3 links I'll share you guys. Don't worry. ओके, फ्यूडिशरी नेचर क्या होता है कि अटमोस्ट फेथ पर, अगर मैं आपको बिना रेम्यूनरेशन दिए आप मेरे लिए कोई काम कर रहे हो, आप मेरी कंपनी की फॉर्मेशन कर रहे हो, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो एक ट्रस्ट रिलेशनशिप है। जब भी किसी के साथ आपका एक फेथफुल रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट के बेस पर होता है, तो हम उसको फ्यूडिशरी नेचर बोलते हैं। एनीथिंग दैट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। So students, I'll just take 2 minutes more and then I'll end the class. So any other questions that you have, please post it. So अगर डायरेक्टर्स को पता चल जाता है जो भी सीक्रेट प्रॉफिट होता है, तो अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता, अगर डिस्क्लोज नहीं करता, नॉन डिस्क्लोजर है, तो वो हेल्ड लायबल है। The company can also sue for the rescission of the contract of sale by the promoter where the promoter has not disclosed his interest. इन बोथ द केसेस, अगर प्रमोटर डिस्क्लोज करता है या नहीं करता, अगर कर भी देता है तो उसका देखो, इफ ही हैज डन एनी रॉन्ग थिंग एंड ही डिस्क्लोज इट, तो उसका कोई ऑल्टरनेट निकल सकता है, ठीक है, कोई ना कोई अदर वे होगा। अगर नहीं बताता तो वो तो एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, नॉन डिस्क्लोजर है, उस केस में उसको लीगली सू कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। बाकी जो भी आपके डाउट्स रहेंगे विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड आपका चैप्टर 3 का सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, सो दैट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। एंड जो भी आपके रिमेनिंग डाउट्स हैं, डोंट वरी, टुडे वी गॉट लिटिल लेस टाइम, डोंट वरी, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। एंड डोंट वरी, आपके जो भी लिंक्स हैं, आपको नोट्स चाहिए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सारे ही शेयर कर दूंगी। थैंक यू।